Good morning, children. How are you? Today I am going to start again chapter number 1, crops and its management. So let's start. This is the page number 6. So further about this we discuss before this then what is seeds and seed sowing system. So again these are the points. The following points should be kept in mind by the farmer while sowing the seeds. It means कि जब farmers seed को sowing करते हैं तो उनके mind में बहुत सारे points होते हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए. So first is seed should be sown at the right distance from each other. Sown. What is the meaning of sown? It means बोना. ये बीजों को हम कैसे बोते हैं? It means हम बीजों को मिट्टी में सॉइल में कैसे डालते हैं. So seed should be sown at the right distance from each other. जब हम बीजों को मिट्टी में डालते हैं तो वो एक दूसरे से राइट डिस्टेंस पर होनी चाहिए. Seeds sown too close to each other will not get sufficient water. It means that कि अगर उन बीजों को, उन सीड्स को अगर हम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास में उनको सोन करेंगे, उनको बोएंगे, that will not get sufficient water. उनको sufficient quantity में water नहीं मिल पाएगा, पानी नहीं मिल पाएगा. And nutrients, they can never get water and nutrients also from the soil से. They will also have competition for sunlight and air. और उनके बीच में एयर को पाने के लिए और सनलाइट को पाने के लिए कंपटीशन रहेगा. इट मीन्स कि वो एयर और सनलाइट उनको प्रॉपर कंडीशन में नहीं मिल पाएगी. सो थर्ड पॉइंट इज सीड्स शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ. सीड्स को इस तरीके से सोन करना चाहिए. ये सारी बातें फार्मर्स को ध्यान रखनी चाहिए. उनकी जो डेप्थ हो, निश्चित एक गहराई हो, डेप्थ. They should neither be too shallow or not too deep. वो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं सीड्स को सोन करना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा टॉप पर. Here, this is the tools for sowing seeds. Which kind of tools? First is traditional tools. It means पुराने टाइम में जो टूल्स हम यूज करते थे, we use at the old times. This is the traditional tools. It is a funnel shaped tool attached to the plow. ये टूल्स कैसा होता है? इसकी जो शेप होती है वो फनल होती है. It means कीप टाइप. We can say other word is funnel. कीप की तरह इनकी शेप होती है. Seeds are filled in the funnel and pass through 2 or 3 pipes. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सीड्स को इस फनल में डाला जाता है. इस फनल को सीड्स से भरा जाता है एंड पास्ड थ्रू 2 or 3 पाइप पियर्सिंग द सॉइल. फिर वो जो बीज होते हैं, वो जो सीड्स होते हैं, वो 2 or 3 पाइप से होते हुए सॉइल पे जाते हैं एंड प्लेसिंग द सीड्स इन सॉइल. और फिर वो जो सीड्स होते हैं फिर उनको मिट्टी में डाला जाता है. नेक्स्ट इज सीड ड्रिल. दिस इज द अदर टूल्स ऑफ sowing seeds. A seed drills consist of a set of vertical tubes. एक seed drills जो बनी होती है एक vertical tube like संरचना से ये बनी होती है. Here, this is the seed drills. You can see here vertical. So a seed drill consists of set of vertical tubes which with a funnel at the top. जिसकी टॉप साइड में क्या होता है? फनल की जैसी स्ट्रक्चर होता है. Seeds are put in the funnel. उन सीड्स को उस फनल के अंदर डाला जाता है and distributed through these vertical tubes. और इस वर्टिकल ट्यूब से उन सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉइल में. Attached to the plow, जो किससे? एक प्लो. What is the meaning of plow? I can say plow in Hindi, हल.
broadcaster, a wide-mouthed tube. In this picture, you have to be seen. This is the broadcasting method. This method is also done by the hand. A wide-mouthed tube. It means this is a wide-mouthed tube that expects seeds randomly on the ground. ये क्या होता है? एक चौड़ा, वाइड मीन्स चौड़ा, चौड़े मुंह जैसी एक ये ट्यूब जैसा संरचना स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सीड्स को डालकर फिर इस सीड्स को स्प्रेड किया जाता है, यानी कि सीड्स को बिखेरा जाता है इसमें, सॉइल में. सो नेक्स्ट इज what is the methods of sowing seeds? So this is the first method is broadcasting. Actually, what is broadcasting? Here scattering of seeds randomly. In this method, इस मेथड में हम क्या करते हैं? स्कैटरिंग ऑफ सीड्स रैंडमली इन द फील्ड इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग. सीड्स का स्कैटर करना, इट मीन्स सीड्स को बिखेरना. स्कैटर इट मीन्स सीड्स को चारों तरफ बिखेरना. सीड्स को रैंडमली चारों तरफ आसानी से इसको सॉइल में बिखेरा जाता है. It can be done by hands. This process is done by hands or using mechanical broadcaster. इस process को हम hand से भी कर सकते हैं और किसी भी mechanical broadcaster से कर सकते हैं. Here this is the broadcasting by hand, or we should use any mechanical broadcasters. Second is sowing by seed drills. It means the other methods of sowing of seeds. It is seed drills. Actually, what is seed drills? By seed drills, seeds are sown uniformly at proper distance and depth. Seed drills is another tools. So here by seed drills के द्वारा seeds are sown uniformly. Seeds को uniformly तरीके से, proper तरीके से at proper distance, उनकी proper distance पर उसको and depth और proper depth. So here we are notice two common things: uniformly, proper distance and depth. सीड्स को सोन किया जाता है. दिस हेल्प्स द प्लांट टू ऑब्टेन प्रॉपर न्यूट्रिशन. और ये प्लांट्स के प्रॉपर न्यूट्रिशन में, उनको प्रोटेक्ट करने में और सीड्स को, बीजों को बर्ड से बचाने में उनकी हेल्प करता है. एंड सेव्स टाइम एंड लेबर. और टाइम और लेबर दोनों को सेव करता है. थर्ड इज ट्रांसप्लांटेशन. एक्चुअली व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन? Seeds of rice and some other plants cannot be sown directly into the field. It means जो राइस के और दूसरे प्लांट्स के सीड्स होते हैं, some kind of plants have example rice and other plants, उनको डायरेक्टली हम मिट्टी में सो नहीं कर सकते. Their seeds are first grown in a nursery. सबसे पहले उन सीड्स को, first of all the seeds are grown in nursery. उनको नर्सरी में ग्रो किया जाता है till the seedling stage, जब तक उनकी सीडलिंग स्टेज ना आ जाए. इट मीन्स सीडलिंग स्टेज जब तक उन प्लांट्स में छोटे छोटे अंकुर ना निकल आए. छोटे छोटे पौधे निकलने तक उनको उसमें ग्रोन किया जाता है. हेल्दी सीडलिंग्स आर द सिलेक्टेड. आफ्टर दैट जो हेल्दी सीडलिंग्स होते हैं, वो प्लांट्स, वो पौधे जिनमें छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं, वो प्लांट्स जो हेल्दी होते हैं, जो सही होते हैं, उनका सिलेक्शन किया जाता है फ्रॉम द नर्सरी बीड्स. कहाँ से? नर्सरी बीड्स से. एंड ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड बाय हैंड. और दोबारा से उनको फिर से
फील्ड में ट्रांसप्लांटेड किया जाता है, उनको दोबारा से फिर से बोया जाता है। नेक्स्ट, just like transplantation of seedlings of paddy. Here, this is the example of transplantation. 1.2, this is irrigation. Actually, what is irrigation? In Hindi, we can say irrigation is सिंचाई. Irrigation. So, supply of water to crops at different intervals. जब हम crops में water की supply different intervals पे करते हैं, यानी कि time to time करते हैं, it's known as irrigation. Time and frequency of irrigation varies from time to time और समय के अकॉर्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है. फर्स्ट क्रॉप टू क्रॉप, वो डिपेंड करती है क्रॉप टू क्रॉप पर, सॉइल टू सॉइल पर. इट मीन्स की क्रॉप कैसी है, सॉइल कैसी है और व्हाट इज द सीजन, और सीजन कौन सा है. सम ऑफ द क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर लाइक राइसेस. कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनमें वाटर बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है. इट मीन्स these crops want more water, standing water, whereas other require less water. और कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको पानी की, वाटर की बहुत कम नेसेसिटी होती है. सिमिलरली, soils which are loamy soils require less water. Which kind of soils? Loamy soil. Loamy soil. Loamy soil require less water. It means this kind of soil wants less water. इस तरह की soil को पानी की जरूरत बहुत कम होती है. As they have good water holding, because क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी पानी की कैपेसिटी अच्छी होती है. But clay soil having low water holding. But जो clay soil होती है, other soil clayey soil. उनकी कैपेसिटी कैसी होती है? लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. So, clay soil having low water holding capacity require more water, and that kind of soils want more water. उनको ज़्यादा पानी चाहिए. Water is evaporated in large amounts from the soil. Water क्या होता है? Soil and leaves during summer. जब समर का सीजन आता है तो वाटर क्या होता है? सॉइल में से बहुत आसानी से समर के सीजन में सॉइल में से वाटर बहुत आसानी से इवेपोरेट हो जाता है और क्या हो जाता है? Therefore, water requirement increase during summer as compared to winter. This is absolutely right. Water की requirement require percentage of water is more in summer and less is in winter. It means समर में वाटर ज़्यादा चाहिए और विंटर में वाटर कम चाहिए. Why do plants needs water? So next is for proper growth and development of flowers, fruits and seeds of plants. Absolutely right. किसके डेवलपमेंट के लिए? प्रॉपर डेवलप प्लांट्स के, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स के
प्रॉपर उनकी ग्रोथ के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? वाटर। वाटर की नीड होती है। रूट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर डिसॉल्व इन वाटर। रूट्स किस चीज को एब्जॉर्ब करती हैं? मिनरल्स को और फर्टिलाइजर्स को। सीड जर्मिनेशन रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ वाटर। सीड जर्मिनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? वाटर। सो 4 इज वाटर प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। वाटर क्रॉप्स को किससे प्रोटेक्ट करता है? हवाओं से, गर्म हवाओं से एंड फ्रॉस्ट, आंधी तूफान से। नेक्स्ट इज ऑल न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट बॉडी यूजिंग वाटर एज ए मीडियम। एब्सोल्युटली राइट। ऑल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट जो होता है प्लांट में वो किसकी हेल्प से होता है? वाटर की हेल्प से होता है। सो नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज? द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर, इट मीन्स कि इरिगेशन किन किन चीजों से होता है? वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, रिवर, डैम, कैनाल। कुएं, ट्यूबवेल्स, तालाब, डैम, बांध एक्सेट्रा। मेथड्स ऑफ इरिगेशन इन हिंदी वी कैन से कुएं, ट्यूबवेल पंप, तालाब, नदियां, बांध एंड कैनाल। वी कैन से कैनाल इन हिंदी नहर। Methods of irrigation. Various methods are used to taking out water from the sources to the fields. It means बहुत सारे methods ऐसे होते हैं वाटर को फ्रॉम द सोर्सेज टू द फील्ड, वाटर को फील्ड्स में पुट किया जाता है। सो ट्रेडिशनल मेथड, सिंपल क्रूड लेबर सिस्टम आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेथड। इस मेथड्स में हम एक सिंपल क्रूड लेबर सिस्टम्स को यूज करते हैं इस ट्रेडिशनल मेथड में। दीज मेथड्स आर चीपर। ये मेथड्स कैसा होता है कंपैरिजन टू द अदर मेथड? चीप होता है एज कैटल और ह्यूमन लेबर की तरह। बट दीज मेथड्स आर टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस एफिशिएंट। इट मीन्स दिस मेथड टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम बट लेस सो मैनी टाइम कंज्यूमिंग। इट मीन्स इस मेथड में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और ये बहुत कम एफिशिएंट होता है, इफेक्टिव होता है। सम ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ द इरिगेशन आर, कुछ इरिगेशन के जो सिंपल मेथड हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जस्ट लाइक मोट। A pulley system is used to lift water from the well. A pulley system. In other words, moat, I can say this is the pulley system. इस pulley system में वाटर को कुएं से, well, it means कुआं, here this is the moat. इस सिस्टम में वाटर को कुएं से निकालकर फील्ड में उसको चारों तरफ स्कैटर किया जाता है, उसको बिखेरा जाता है। Next is chain pump. This is the chain pump. It consists of a pump having endless chain. इसमें क्या होता है? It consists of a pump. इसमें एक पंप होता है जो किससे बना होता है? Endless chain. एक ऐसी चेन होती है जो बिल्कुल किनारे से इसको जोड़ती है, रनिंग ओवर ए ड्रम और व्हील। और वो चेन कहाँ पर होती है? एक ड्रम और व्हील पहिए के चारों तरफ वो रन करती है। By which is removed and water is raised. जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से पानी को निकाला जाता है, just like this. This is the chain, this is the buckets and this is the water source. बकेट्स के अंदर पानी है, इस पानी को इसकी हेल्प से निकालकर फिर उसको फील्ड में
मिट्टी में डाला जाता है। थर्ड इज directly. A very crude system using a log of wood to put out water from the well. इस सिस्टम में this is the crude system, this is the crude प्रणाली using a log of wood, जिसमें वुड के डंडों को यूज किया जाता है to pull out water from the well. वेल से कुएं से पानी को निकालने के लिए। फोर्थ इज राहत। इट इज अ सिंपल लेवर सिस्टम। ये एक सिंपल लेवर सिस्टम होता है कंसिस्टिंग ऑफ ए व्हील, जो किससे मिलकर बना होता है, व्हील यानी कि पहियों से, अटैच टू ए नंबर ऑफ बकेट्स। और वो व्हील किससे अटैच्ड होता है, किससे जुड़े हुए होते हैं, बकेट्स से। व्हील रोटेट्स व्हिच पुल्स आउट। जैसे जैसे कि व्हील रोटेट करता है तो वेल से क्या होता है, पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स टू द फील्ड्स। और इस वाटर को फिर फील्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो दिस इज द मोड सिस्टम। And this is the chain pump system. Now, these are the modern methods. How many types? Drip irrigation, sprinkler irrigation, and furrow irrigation. Actually, what is modern method? In this modern methods, they are some economical and efficient. Nowadays we use and farmers also use modern methods for irrigations because they are economical efficient. ये बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं और efficient होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। Some commonly practiced methods are here. First is drip irrigation. So first is drip irrigation. Actually, what is drip irrigation? It uses अंडरग्राउंड पाइप्स हैविंग स्मॉल होल्स। इस मेथड में अंडरग्राउंड यानी कि ग्राउंड के अंदर पाइप का यूज किया जाता है। उन पाइप्स में छोटे छोटे स्मॉल होल्स, होल्स मींस छेद, उन पाइप्स में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, निश्चित डिस्टेंस पर, पॉजिटिव एट द रूट्स। और उन पाइप्स को कहां पर सेट किया जाता है, रूट्स की साइड में, जस्ट लाइक दिस। दिस इज द ड्रिप इरिगेशन मेथड्स। दिस इज द पाइप एंड दीज आर द ड्रिप। पाइप Does they carry water directly to the roots? इनसे क्या होता है कि जो वाटर होता है वो डायरेक्टली इनकी रूट्स में जाता है, इन प्लांट्स की रूट्स में जाता है एंड प्रिवेंट इवापोरेशन एंड फ्लडिंग। और ये इवापोरेशन से और फ्लडिंग से, इट मींस बाढ़ से इनको प्रोटेक्ट करता है। मोस्टली यूज इन केस ऑफ फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। इस मेथड का जनरली हम कहाँ यूज करते हैं, फ्रूट्स प्लांट्स में। Generally they are used in fruit plants, gardens and trees में। So second is sprinkler method. This is the other modern method. So it consists of a main pipeline connected with the several perpendicular pipes. ये this is the sprinkler irrigation method. In this method में एक main pipeline होती है जो बहुत सारे perpendicular पाइप से कनेक्ट रहती है, just like this। Having rotating nozzle at the top, और इनकी टॉप पर एक नोजल होती है। Water flows through the main pipe under pressure with the help of pump।
और अंदर की साइड में पंप की सहायता से जो वाटर होता है वो नोज से वो उसको प्रेशर किया जाता है बाहर आने के लिए एंड एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। इट और जो नोजल्स होती है फिर वो रोटेट करना स्टार्ट शुरू हो जाता है। इट गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप लाइक रेन, और क्रॉप की ऊपर साइड पर रेन की तरह पानी का स्प्रिंकल होना स्टार्ट हो जाता है, जस्ट लाइक रेन, जैसे बारिश हो रही हो। इट इज यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल विच कैन नॉट रिटेन वाटर, और ये सैंडी सॉइल इट मीन्स सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी जिसको बोलते हैं, सॉइल मिट्टी, ये दिस इज यूजफुल फॉर द सैंडी सॉइल्स, ये रेतीली मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है जिसमें पानी एक जगह नहीं रुकता है। थर्ड इज फुरो इरिगेशन। एक्चुअली व्हाट इज फुरो इरिगेशन? इन अदर वर्ड्स फुरो इज कॉल्ड कुंड। This field is divided into, in this method, in this irrigation, the field is divided into ridges and furrows. इस मेथड्स में हम फील्ड को, खेतों को रिजेस एंड फर्स में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट मीन्स कतारों में और कुंड में। प्लांट्स आर ग्रोन ऑन रिजेस, और प्लांट्स को कहाँ ग्रो किया जाता है? रिजेस में, यानी कि प्लांट्स को इस तरीके से, दिस इज द फुरो इरिगेशन। प्लांट्स को इस तरह रिजेस में ग्रो किया जाता है, लगाया जाता है, और इनके बीच में यहां पर दिस इज द वाटर, एंड वाटर फ्लोज थ्रू द फर्स थ्रू अ पंप, और पंप की सहायता से वाटर को डाला जाता है। फोर्थ इज बेसिन इरिगेशन। सो एक्चुअली व्हाट इज बेसिन इरिगेशन? दिस इज द अदर काइंड ऑफ इरिगेशन मेथड, मॉडर्न मेथड। The field is converted into a basin and filled with water. उसमें कहते हैं कि फील्ड को बेसिन में कन्वर्ट किया जाता है एंड फिल्ड विथ वाटर, और उसमें पानी भरा जाता है। यूजफुल फॉर द क्रॉप्स विच रिक्वायर स्टैंडिंग वाटर। ये उन वाली क्रॉप्स के लिए यूजफुल है जिसमें बहुत सारा पानी रुका हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट इज वाटर लॉगिंग। सो व्हाट इज वाटर लॉगिंग? इफ excessive irrigation is done, water accumulates, means इकट्ठा होना around the plants। it means कि अगर plants के चारों तरफ बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है इरिगेशन के टाइम पर, cause damage by decreasing the irrigation, तो plants में, सॉइल में एरिएशन की परसेंटेज घट जाती है। it means सॉइल में ब्रीथिंग नहीं हो पाती है, और डिक्रीजिंग द इरिगेशन डिक्रीज होने लगता है, एंड इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सॉइल, और सॉइल की परसेंटेज, सॉइल का अमाउंट उसमें इंक्रीज होने लगता है। थैंक यू।